मर गया। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें चीजों को एनालाइज करना चाहिए, समझना चाहिए, पहले से डरना नहीं चाहिए। So firstly, I would like to say thanks to Mr. Javed sir. A very good evening to all of you. I hope that all you are well and enjoying your life. So my name is Harsh. I am here as an anchor just because of Javed sir. Once again, I want to thanks to Mr. Javed sir. And now I'll tell you a story. A glass of water was placed on a table. One person said that it's half filled. Second person said that it's half empty. Both they saw same bottle, but it were different. It means दोनों ने एक ही बोतल देखी, लेकिन एक ने आधी बोली खाली है और एक ने बोला आधी भरी है। तो दोनों का नजरिया अलग अलग था। So the first person was pessimistic, focusing on what was lacking on it, and the second person था वो निराशावादी था, क्योंकि वो फोकस कर रहा था उन खाली चीजों पे। और जो सेकंड पर्सन था वो एक आशावादी था और उसे बोतल आधी भरी हुई लग रही थी। So now I would like to invite our motivational speaker with a wealth of experience and a proven track records of success. Our seniors, coach and mentors has inspired countless gives individuals to reach a height. We are honored and glad to have Miss Sonam expertise and insights. So please join us in the warm welcoming of Miss Sonam. Let's learn from Sonam wisdoms and leadership. So please welcome Miss Sonam and keep clapping. So guys, a very good evening everyone. At first, I would like to give thanks from bottom of my heart to my mentor, my idol and the role model of my life, Mr. Javed sir. Also deeply grateful to my leader who have given me and challenged me to be my best. Their encouragement has been driving a force on my professional growth, and I'm also give thanks to Hers for calling me on stage. Thank you Hers. And I'm pursuing BA program course from Hansraj College from Delhi University, as well as I am learning English speaking course in JEC Institute. I have the habit of learning Hanuman Chalisa on Tuesday and reading newspaper on every day. I have one reward of taking first position in class 12 and second reward of best artist in a school. And I wish to become a successful one as a profession of teacher and lawyer in my future. So I am thrilled to connected with you, and I am so excited to give my motivational session. So, as you all know, today is a motivational session in our institute. So, what is the topic name of today's motivational session? Please, anyone can tell me what is the name of today's motivational session? Attitude. Yes, you are saying right. Today's motivational session name is attitude. So, what is the meaning of this little word? Anyone can know what is the meaning of this little word? Anyone? No one. हमारे देखने का नजरिया. Yes, you are saying right. Nazariya. The meaning, there are lots of meaning of this little word. Nazariya, स्वभाव, मनोवृत्ति and रवैया. हमें इस वर्ड के मीनिंग से ही समझ आता है कि ये वर्ड है क्या। जैसे मनोवृत्ति, हमारी मनोवृत्ति कैसी है, हमारी सोचने की क्षमता कैसी है लोगों के साथ। और रवैया, हमारा दूसरों के साथ रवैया कैसा है, स्वभाव कैसा है। और द लास्ट इज नजरिया, हम किस नजरिए से चीजों को देखते हैं, हमारा स्वभाव, मतलब हम किस नजरिए से चीजों को देखते हैं, क्या वे यूज करते हैं उन चीजों को देखने का। we all are want to change our personality, that's why we come here, and I am saying that today we are all want to change our personality, and that's why we are come here. There are three things are important to change our personality. First is
द वे ऑफ स्पीकिंग, हम किस प्रकार की बातें करते हैं, हमारा वे क्या है स्पीकिंग का. एंड द सेकेंड इज द वे ऑफ क्लॉथिंग एंड ड्रेसिंग, हम किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं. द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द वे ऑफ सीइंग वर्ल्ड, एंड दिस वर्ल्ड see with a attitude, our attitude. So guys, today's my topic is relevant to your age group because it is compulsory to know about this topic, attitude. Because क्योंकि अगर हम बाहर की दुनिया में कहीं जा रहे हैं तो हमारा एटीट्यूड ही बताता है कि हम कैसे इंसान हैं, कैसे व्यक्ति हैं. तो we all are want to change our personality, so that's why we come here to change our personality and learning the points of develop our personality. And you are all know there are lots of things are required to change our personality, but there are three things are more important to change our personality. First is the way of speaking, हम हमारा किस तरीके का वे है बात करने का. The way of dressing, हम किस तरीके के कपड़े पहनते हैं. And the way of and the which type of attitude we follow, हमारा लोगों के साथ. So that's why I am saying that so according to my point of view, attitude is the altitude of life. So why I am saying that attitude is the altitude of life? I am saying that attitude is the altitude of life. आप सबने सुनी होगी एक कहानी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत. जो हमारा मन सोचता है हमें उसी हिसाब से चीजें मिलती हैं. अगर हमारा मन ही सोच लेगा कि ये हम उस चीज में हार जाएंगे तो हम लोग हार ही जाएंगे, और हमारा मन सोचेगा कि हम उस चीज में जीत जाएंगे तो जीत जाएंगे. तो आप सब जानते होंगे कि कुदरत हमें बहुत कुछ सिखाती है. Animals are very important to learn. So that's why I'm taking the example of lion. You all know the lion is a king of animal kingdom. A lion is a king of animal kingdom, but he is not a tallest as giraffe, and he is not clever. He is not heaviest animal in the kingdom and in jungle, but he is a king. Why he is a king? Because he has a different attitude. एक हाथी होता है, एक शेर होता है जंगल में एक टाइम पर. तो जो लायन है वो हाथी को देखता है और वो क्या सोचता है कि he is my lunch. हाथी जब शेर हाथी को देख रहा है तो वो क्या सोच रहा है, he is my lunch. एंड जब हाथी शेर को देख रहा है तो वो क्या सोच रहा है, he is a eater, ये तो मुझे खाएगा. तो लायन ने जब इसको लंच सोचा तो उसने एक्ट भी उसी हिसाब से किया, है ना. उसने जब एक्ट इस हिसाब आती है एटलीस्ट 10 गुना बड़ा और भारी है लायन से, बट उसने फिर भी क्या सोचा कि ही इज माई लंच. एंड हाथी जबकि इतना बड़ा है, इतना ताकतवर है, एक पंजा मार दे अगर लायन को तब वो मर सकता है, बट फिर भी वो सोच रहे कि ही इज अ ईटर, ये मुझे खाएगा. वो डर नहीं रहा उससे. क्यों नहीं डर रहा? क्योंकि उसे पता है कि उसका एटीट्यूड वही है, उसका रवैया वही है कि ये मुझे खा लेगा, तो उसने वो उससे डर रहा है. This is a state of mind. If you think if you want to get success, you think as a successful man. अब जो लायन और हाथी की जो बात है, इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें सीख मिलती है कि हमारा बिलीफ सिस्टम कैसा है. अगर हमारा बिलीफ सिस्टम अच्छा है, हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, तो हम कुछ भी जो भी चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं वो हम आराम से अचीव कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास बहुत नॉलेज है, आपने बहुत सारे सेमिनार कर रखे हैं, बट आप फेल हो जाएंगे उस चीज किसी भी काम में अगर आपका बिलीफ सिस्टम वीक है. और अगर आपने कोई सेमिनार नहीं कर रखा, आपकी कोई नॉलेज नहीं है आपके पास, और आपके पास पैसे भी नहीं है, आप उस एग्जाम को या कोई भी काम को क्रैक कर सकते हैं अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है. द बिलीफ सिस्टम इज मोर इम्पॉर्टेंट टू आवर लाइफ. Which type of thoughts came into your mind? Please tell me anyone. Which type of thoughts came into your mind when you see this bottle? Anshika, please tell me. Yes. Okay, the table. And you? You say story this bottle. Okay, and Sanya. The bottle is half full. Yes, the bottle is half full. So why some people say the water bottle is half full. See, these type of people are optimism. ये लोग आशावादी होते हैं. ये क्या सोचते हैं कि बॉटल क्या है, आधी भरी हुई है. And some people
सी द वर्ल्ड थ्रू द फिल्टर ऑफ पेसिमिज्म, द बॉटल इज हाफ एम्प्टी। वो लोग होते हैं निराशावादी, जो ये सोचते हैं कि बॉटल आधी खाली है, वो ये नहीं देखते कि बॉटल आधी भरी है। तो हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए? आवर एटीट्यूड इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। हमारा एटीट्यूड ही बताता है कि हम किस चीज को किस तरीके से देख रहे हैं। आपने कभी एक बच्चे को देखा? जस्ट लुक दोस चाइल्ड विच आर लर्निंग टू वॉक, जस्ट लुक at those child which are learning to walk, जो चलना सीख रहा है। The little child always love to explore new things and they love to explore new things and when the child is try to walk on road and then he suddenly fall on road, then he doesn't thought कि मैं गिर गया हूँ जमीन पर, है ना। he doesn't blame parents कि माँ आपने तो मुझे मेरे को लूजली पकड़ा था, that's why मैं गिर गया, and he doesn't say oh no क्या हो गया। ना वो अपनी माँ को ब्लेम कर रहा है और वो ना ये कह रहा है कि ओह नो क्या हो गया। he get up again and he walk again। हमें हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? उस चलने सीखने वाले बच्चे की तरह होना चाहिए कि हम अगर गिर रहे हैं, अगर हमारे से कोई काम नहीं हो रहा है तो हमें उस चीज को ट्राई करना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य सब जानते होंगे, हिस्ट्री के लोग हैं ये लोग। एक गुरुजी होते हैं और एक शिष्य होते हैं। शिष्य जो है गुरुजी से कहता है कि आप हमेशा एटीट्यूड के बारे में बात करते हैं, तो ये एटीट्यूड है क्या? तो गुरुजी बोलते हैं अच्छा इस सवाल का जो जवाब है वो हमें ये जो 3 काम करने वाले लोग हैं इनसे पूछते हैं। शिष्य कहता है कि सर आप इतने विद्वान हैं, मैं इतना विद्वान हूँ, तो हम उनके पास क्यों जाएं ये जानने के लिए कि एटीट्यूड क्या है? तो इस बात पर गुरुजी कहते हैं कि यही तो एटीट्यूड का फर्स्ट टाइप है। शिष्य ऐसी बात कहता है तो गुरुजी उसको एक स्टोरी सुनाते हैं चाणक्य और चंद्रगुप्त की। चाणक्य और चंद्रगुप्त मगध के ऊपर आक्रमण करते हैं। मगध एक जगह है, एक राज्य था उस वक्त, तो उस पर आक्रमण करते हैं उसको जीतने के लिए बार बार, पर वो बार बार उसको जीतने के लिए आक्रमण तो कर रहे हैं पर वो बार बार हार रहे होते हैं। उसपे क्या होता है, जब चाणक्य और चंद्रगुप्त की जो सेना है वो एक बार क्या होता है पूरी विध्वंस हो जाती है, मतलब पूरी खत्म हो जाती है। तो चाणक्य और चंद्रगुप्त जो है एक स्त्री के घर में आश्रय ले लेते हैं। जब चाणक्य और चंद्रगुप्त एक स्त्री के घर में आश्रय लेते हैं तो उस स्त्री को नहीं पता होता कि ये जो मेरे घर में शरणार्थी है, मतलब जो मेरे घर में गेस्ट है वो चाणक्य और चंद्रगुप्त हैं। तो एक बार क्या हो रहा होता है, उसका जो बच्चा है वो खाना खा रहा होता है, तो उसका जब वो बच्चा एकदम से चिल्लाता है तो माँ उसकी पूछती है बेटा क्या हुआ? तो वो बच्चा बोलता है मम्मी हाथ जल रहा है मेरा। तो माँ कहती है कि तुम वैसे ही मूर्ख हो जैसे चाणक्य और चंद्रगुप्त। अब वो लोग उस घर में बैठे हैं, उन्हें पता है कि ये औरत क्या बोल रही है। अब इस जगह पे हम लोग जैसे लोग होते तो हम बोलते उस तुरंत औरत से कि आप कैसे बोल रहे हैं, हम कैसे मूर्ख हैं। बट उन लोगों ने वहां पे धैर्य रखा, उन्होंने उसकी औरत की बातों को समझा। तो उस औरत ने कहा कि तुम वैसे ही मूर्ख हो जैसे चाणक्य और चंद्रगुप्त। तो उस औरत ने ऐसा इसलिए समझा, ये इसलिए कहा क्योंकि चाणक्य और चंद्रगुप्त भी मगध को जो है बीच रास्ते में मतलब लेते बार बार, इसलिए वो हार रहे थे। और वो जो बच्चा था वो भी जो रोटी खा रहा था ना, वो भी बीच से खा रहा था, इस वजह से उसका जो हाथ है वो बार बार जल रहा था। तो उसकी माँ उसे कहती है कि रोटी हमेशा साइड से खाई जाती है। तो जब चाणक्य और चंद्रगुप्त ये सब बातें सुन रहे होते हैं तो उनको तुरंत ज्ञान आता है कि हमें भी क्या है, अगर हमें मगध को जीतना है तो हमें साइड से आक्रमण शुरू करना पड़ेगा। तो फिर वो ऐसा ही करते हैं और फिर वो जीत जाते हैं मगध को। एंड तब जब गुरुजी ये सारी कहानी बताते हैं शिष्य को, तो शिष्य आपकी बात ये सुन के मुझे लगता है कि मुझे वहां जाना चाहिए उन तीनों लोगों के पास, कि पूछना चाहिए क्या मतलब क्या कर रहे हैं वो लोग और क्या है एटीट्यूड। तो वो तीनों के पास जाता है। तो फर्स्ट व्यक्ति के पास जब वो जाता है तो उनसे कहता है कि आप क्या कर रहे हैं? तो वो बोलता है दिखता नहीं है, ईंट बना रहा हूँ। वो क्या कहता है, दिखता नहीं है, ईंट बना रहा हूँ। तो वो कहता है अच्छा ठीक है बैठ जाइए। वो डर जाता है, शिष्य जो वो डर जाता है क्योंकि वो गुस्से में होता है व्यक्ति। फिर वो दूसरे के पास जाता है कि आप क्या कर रहे हैं? तो वो कहता है कि मैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कार्य कर रहा हूँ, मुझे मतलब ईंटें बना रहा हूँ। तो वो कहता है अच्छा ठीक है आप भी बैठ जाइए, शिष्य कहता है उससे।
फिर वो जाता है तीसरे व्यक्ति के पास और उससे पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो वो कहता है कि मैं एक बड़ी इमारत बनाने के लिए सामग्री बना रहा हूँ। वो ये नहीं देख रहा कि वो ईंट बना रहा है, वो ये देख रहा है कि इससे एक बड़ी इमारत बनेगी, एक महल बनेगा, वो ये देख रहा है। तो इसीलिए उसके लिए बड़ा काम होना चाहिए, पर वो मजबूरी में वो काम कर रहा है। तो इस वजह से वो इंसान क्या है, दुखी है। दूसरा व्यक्ति दुखी तो नहीं है पर खुश भी नहीं है, वो काम कर रहा है, वो ना तो काम छोड़ेगा, करता रहेगा, क्योंकि उससे क्या, उसकी रोजी रोटी चल रही है। और जो तीसरा व्यक्ति है वो ये सोच रहा है कि इससे एक बड़ी इमारत बनेगी, इसलिए वो खुश है। तो हमें भी हमेशा क्या, हमेशा खुश होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो हम बस, जैसे अब आप सब लोग यहाँ आते हैं, एक्टिविटीज वगैरह करते हैं, तो आप लोगों को खुश होना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा काम है कि हम लोग यहाँ आ रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इंग्लिश में बोल क्यों नहीं रहे जल्दी से। सो once again good evening everyone. So अब हम बात करेंगे how many types of attitude. So there are two types of attitude, positive attitude and negative attitude. Negative attitude, negative people attitude thoughts, like their mind filled with spattered of mud. And positive attitude people think I may lose, I may win, but I am not be defeated. चाहे मैं हारूं, चाहे मैं जीतूं, पर मैं कभी हारूंगा नहीं। नेगेटिव पीपल थिंक देयर माइंड विल देयर ऑफ मड, उनका दिमाग जो है मिट्टी से भरा हुआ होता है। और पॉजिटिव पीपल थिंक आई मे लूज, आई मे, बट आई नेवर बी डिफीटेड। एक बार क्या होता है, दो भाई होते हैं, जापान में रहते हैं। एक का नाम होता है जो और एक का नाम होता है वो। जो बाथरूम में जाता है तो उसको भूत दिखता है वहां पे, तो वो डर जाता है, तो वो को आवाज देता है। वो दौड़ते हुए आता है और उससे पूछता है क्या हुआ, तो और उसको सडनली एक भूत दिखता है वो को, तो वो मर जाता है। तो तब से वो कहावत बनी है कि जो डर गया और वो मर गया, कि मतलब जो डर गया उसने सोचा कि भूत है, जो डर गया और वो ने क्या, इसको मान लिया, इसलिए मर गया। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें चीजों को एनालाइज करना चाहिए, समझना चाहिए, पहले से डरना नहीं चाहिए। तो पीपल लोग होते हैं, जो नेगेटिव माइंड के लोग होते हैं, वो क्या देखते हैं चीजों को, जैसे वो हमेशा ये कहते हैं I can't. They always deal with problems. They always see in others. They always see in problems, and they always count a number of empty. कि कितनी चीजें कम है, कितना कम है। And the positive people think I can, and they always find a solution of problems. They always count the blessings of others, कि मेरे पास लोगों की कितनी blessings हैं। They never see empties, full of glass. They all never see the glass being half empty. Our attitude is a paintbrush of our life. If we have a positive attitude, then our life is filled with bright colors, and if we have a negative attitude, then our life filled with dark colors. Now I am saying that attitude is based upon your action. Attitude is based upon your action. जो हमारा एटीट्यूड है वो हमारे एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक मैं एक एग्जांपल, आपको एक एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो पॉजिटिव एटीट्यूड क्या वो होना चाहिए कि मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा, ये पॉजिटिव एटीट्यूड है। ये एटीट्यूड नहीं, ये पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। अच्छा होगा नहीं, हम अगर ये सोचेंगे कि हमारा रिजल्ट अच्छा होगा तो ये फुलिश एटीट्यूड है। एटीट्यूड इज बेस्ड अपॉन योर एक्शन, कि हम एक्शन किस प्रकार कर रहे हैं उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। लाइक मान लीजिए आपने उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कोई मेहनत की नहीं है, ठीक है, बट आप ये सोच रहे कि आपका हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। अब आप अगर उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए जितनी बड़ी एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि मेरा ये एग्जाम सक्सेसफुल हो जाएगा, मैं इस एग्जाम को क्रैक कर लूंगी, उतना ही बड़ा आपको झटका लगेगा उस बात को सुन के कि मेरा एग्जाम क्रैक नहीं हुआ। इसलिए हम लोगों को एटीट्यूड हमारा बेस्ड अपॉन होता है किस पे, एक्शन पे, जो हमने पास्ट में लिए हैं या जो फ्यूचर में हम लेने वाले हैं। तो आर एटीट्यूड इज बेस्ड अपॉन योर आर एक्शंस। करना हो तो कैसे करेंगे, एंड इन हंड्रेड्स में से
सभी लोग एक एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, मान लो नीट ही क्रैक करना चाहते हैं, नीट एग्जाम। सो इन 100 में से 20 people, sorry for saying that, 20 people are serious to crack this exam. So and in 80 में 20% और माइनस कर दिया जाए, ये 20% वो लोग हैं जो उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए सीरियस भी हैं, देना भी चाहते हैं और उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं। तो कितने बचे? 60 पीपल्स। अब 60 पीपल्स बचे। अब इस 60 में से 20% और माइनस किया जाए, 20 पीपल्स और माइनस किया। अब ये वो लोग हैं जो जिनके पास मतलब खूबी है उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अब हम चाहते कोई एग्जाम क्रैक करना, बट हमारे पास तो वो क्वालिटीज ही नहीं है। अब मान लीजिए, अब मुझे जब ज्यादा पढ़ने की आदत ही नहीं है तो मैं एग्जाम कैसे क्रैक कर लूंगी नीट का? तो मेरे को अपनी कैपेबिलिटी भी तो देखनी पड़ेगी। तो इस वजह से अब 20% वो माइनस हो गए तो कितने बचे? 40। अब इन 40 पीपल्स में से 20% के पास कैपेबिलिटी होगी और 20% लोग जो होंगे बिल्कुल सीरियस होंगे, जिनके घर का माहौल होगा, मतलब हाँ कि आप एग्जाम दे सकते हैं। और कुछ के पास तो पैसे की भी प्रॉब्लम्स होती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन 20 में से आप 40% पे आप आ जाएंगे जब, तो अब आपका कोई एग्जाम क्लियर हो सकता है कि अब आपके हाफ चांसेस हैं जीतने कोई एग्जाम क्रैक करने के लिए या किसी भी चीज के लिए। सो हम इस वजह से मैं कह रही हूँ कि आर एटीट्यूड इज बेस्ड अपॉन आर एक्शन, नॉट द रिजल्ट। इफ यू थिंक कि मेरा होगा, मेरा अच्छा है। अच्छा, जब एग्जाम हम किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे या किसी नौकरी के लिए, तो घर में क्या होता है कि बेटा शुभ शुभ बोल, तेरा होगा। और अगर गलती से मुंह से ये भी निकल जाए कि नहीं मम्मी मेरा नहीं होगा, तो वो लोग कहते हैं नहीं बेटा तू ऐसा क्यों कह रहा है। ये पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होता। पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारे एक्शंस क्या कर रहे हैं हम उसको करने के लिए। मान लीजिए कि मैं पढ़ना नहीं चाहती, तो मैं बिना पढ़े अगर खुश हो रही हूँ, तो ये क्या पॉजिटिव एटीट्यूड है? नहीं, ये पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड ये होता है, हमारा एटीट्यूड कब पॉजिटिव होता है? मान लीजिए मैंने एक शेड्यूल बनाया कि मुझे इतने से इतनी देर पढ़ना है और मैंने उतनी देर पढ़ लिया, और फिर जो मुझे खुशी मिल रही है, तब मेरा एटीट्यूड क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो अगर मैं एक्शन ही नहीं करूंगी तो मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव कैसे हो सकता है? तो हम लोगों को अगर अपना बिहेवियर चेंज करनी है, अपनी पर्सनैलिटी चेंज करनी है, तो हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। और जो अगर एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है तो हमें एक्शन करने पड़ेंगे। तो हर चीज काम से रिलेट करती है कि हम काम क्या कर रहे हैं, हम किस प्रकार उस चीज को देख रहे हैं। एट द एंड टुडे आई एम गिविंग 3 points to all of you, like our attitude is the altitude of life. Second point is attitude is a window to the world, and the third point is attitude is based upon your action, कि हम attitude हमारा action के ऊपर डिपेंड होता है। आपको पता होगा coins are make a sound, but currency notes not make a sound in pocket. So why currency are not make a sound in pocket? Because they have a attitude, they have a different attitude to coins, and we have to consider the attitude of currency notes, not a coins. And